यस सर, प्रेजेंट हो रहा है। An IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3 month PHP training course and Mr. Amit was my trainer. During the training period, Mr. Amit was very helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. I'm from We celebrate International Women's Day. We celebrate. Want to was anything in Why PHP? celebrating Women's Day? We celebrate Women's Day. We celebrate Women's Day on every 8th March to observe women's success part in cultural program. Now I'm from UniBIT University, and I would like to tell you that I've taken the PHP course from Amit sir, and it was very good. I was studying for about 3 to 4 months, and he taught me everything. And if you want to pursue anything in PHP, you can go for his course, and it is very good, and it will help you for the future, and you can make projects also with him. And he's very cooperative also. So I would recommend Amit sir from Lucknow. Now I'm from UniBIT University, and I would like to tell you that I've taken the PHP course from Amit sir, and it was very good. I was studying for about 3 to 4 months, and he taught me everything. And if you want to pursue anything in PHP, you can go for his course, and it is very good, and it will help you for the future, and you can make projects also with him. And he's very cooperative also. So I would recommend Amit sir from Lucknow. Now I'm from UniBIT University. Hi, I'm Kumar Satyanan, working as an IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3 month PHP training course and Mr. Amit was my trainer. During the training period, Mr. Amit was very helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. Hi, I'm Kumar Satyanan, working as an IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3 month PHP training course and Mr. Amit was my trainer. During training period, Mr. Amit was very helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. Hi, I'm Kumar Satyanan, working as an IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3 month PHP training course and Mr. Amit was my trainer. During the training period, Mr. Amit was very helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. Hi. And I would like to tell you that I've taken the course from Amit sir, and it was very good. I was studying for about 3 to 4 months, and he taught me everything. And if you want to pursue anything in PHP, you can go for his course, and it is very good, and it will help you for the future, and you can make projects also with him. And he's very cooperative also. So I would recommend Amit sir from Lucknow. Now I'm from UniBIT University, and I would like to tell you that I've taken the PHP course from Amit sir, and it was really good. I was studying for 3 to 4 months, and he taught me everything. And if you want to pursue anything in PHP, you can go for his course, and it is very good, and it will help you for the future, and you can make projects also with him. And he's very cooperative also. So I would recommend Amit sir from Lucknow. And I am from Hi, my name is Ashish. I am a physiotherapist by profession and I live in Canada. I own a physiotherapy clinic here.
I had a privilege to take help of Amit in developing my website. My website turned out to be really nice and attractive. All the credit goes to Amit. He's a very friendly, professional person and is always eager to help you out. I wish him all the best in all his future endeavors. Thank you. I'm Kumar Satyanan, working as an IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3 month PHP training course and Mr. Amit was my trainer. During the training period, Mr. Amit was very helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. Hi, I'm Kumar Satyanan, working as an IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3 month PHP training course and Mr. Amit was my trainer. During the training period, Mr. Amit was very helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. Very much. Hi, my name is Ashish. I'm a physiotherapist by profession and I live in Canada. I own a physiotherapy clinic here. I had a privilege to take help of Amit in developing my website. My website turned out to be really nice and attractive. All the credit goes to Amit. He's a very friendly, professional person and is always eager to help you out. I wish him all the best in all his future endeavors. Thank you very much. Hi, my name is Ashish. I am a physiotherapist by profession and I live in Canada. I own a physiotherapy clinic here. I had a privilege to take help of Amit in developing my website. My website turned out to be really nice and attractive. All the credit goes to Amit. He's a very friendly, professional person and is always eager to help you out. I wish him all the best in all his future endeavors. Thank you very much. Hi, my name is Ashish. I am a physiotherapist by profession and I live in Canada. I own a physiotherapy clinic here. I had a privilege to take help of Amit in developing my website. My website turned out to be really nice and attractive. All the credit goes to Amit. He's a very friendly, professional person and is always eager to help you out. I wish him all the best in all his future endeavors. Thank you very much. Hi, my name is Ashish. I am a physiotherapist by profession and I live in Canada. I own a physiotherapy clinic here. I had a privilege to take help of Amit in developing my website. My website turned out to be really nice and attractive. All the credit goes to Amit. He's a very friendly, professional person and is always eager to help you out. I wish him all the best in all his future endeavors. Thank you very much. Hi. Hi, I'm Kumar Satyanan, working as an IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3 month PHP training course and Mr. Amit was my trainer. During the training period, Mr. Amit was very helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. Hi, I'm Kumar Satyanan, working as an IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3 month PHP training course and Mr. Amit was my trainer. During the training period, Mr. Amit was very helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. Hi, I'm Kumar Satyanan, working as an IT. IIT University, and I would like to tell you that I've taken the PHP course from Amit sir, and it was very good. I was studying for about 3 to 4 months, and he taught me everything. And if you want to pursue anything in PHP, you can go for his course, and it is very good, and it will help you for the future. And you can make projects also with him, and he's very cooperative also.
So I would recommend Amit sir from Lucknow. ना हल्का हल्का। वेलकम टू एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विनोद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं यशम एकेडमी में। हेलो, आई एम ऑडिएबल? Yes, sir. ओके, फाइन फाइन। मैं विनोद पांडे यशम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वेबिनार का सेशन है, ठीक है। अभी सभी स्टूडेंट्स आते हैं, तब तक हम कुछ अच्छे फीडबैक्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स के। हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानने का अच्छा मौका मिले। इस वे से आप उनको समझ सकते हो, उनका क्या वर्किंग बैकग्राउंड है, सर कैसे प्रोफेशनली वर्क करते हैं, एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे हम वर्क करा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उसी के बारे में हम जानते हैं। हेलो, हाँ मैम। And I am from Geneva IT University, and I would like to tell you that I've taken the PHP course from Amit sir, अच्छा, and it was very good. I was studying for about 3 to 4 Continue. months, and he चलेगा taught me चलेगा। everything. आप मुझे उनका नाम And वगैरह if you बता want दीजिए to ताकि मैं इंट्रोड्यूस pursue करा सकूँ, anything मतलब in वेलकम के लिए, है ना? PHP, you can Yes, correct. go for his course, and WhatsApp it is very good. yes. And और आप भी ज्वाइन कीजिए future, meeting. and you can make projects also with him. And he's Yeah, very yeah. cooperative also. ऑलरेडी शुरू हो चुका है, I recommend तो आप Amit sir मतलब from हमने Lucknow. स्टार्ट किया है, जस्ट वीडियो वगैरह चल रहा है अभी, तो कीजिए। I'm from Geneva University, and I would like to tell you that I've taken the PHP course from Amit sir, and it was very good. I was studying for about 3 to 4 months, and he taught me everything. And if you want to pursue anything in PHP, you can go for his course, and it is very good, and it will help you for the future. And you can make projects also with him, and he's very cooperative also. So I would recommend Amit sir from Lucknow. And I'm from Geneva IT University, and I would like to tell you that I've taken the PHP course from Amit sir, and it was very good. I was studying for about 3 to 4 months, and he taught me everything. And if you want to pursue anything in PHP, you can go for his course, and it is very good, and it will help you for the future. And you can make projects also with him, and he's very cooperative also. So I would recommend Amit sir from Lucknow. And I am from Hi, my name is Ashish. I am a physiotherapist by profession and I live in Canada. I own a physiotherapy clinic here. I had a privilege to take help of Amit in developing my website. My website turned out to be really nice and attractive. All the credit goes to Amit. He's a very friendly, professional person and is always eager to help you out. I wish him all the best in all his future endeavors. Thank you very much. Hi, my name is Ashish. I am a physiotherapist by profession and I live in Canada. I own a physiotherapy clinic here. I had a privilege to take help of Amit in developing my website. My website turned out to be really nice and attractive. All the credit goes to Amit. He's a very friendly, professional person and is always eager to help you out. I wish him all the best in all his future endeavors. Thank you very much. राधे राधे, मेरा नाम विशाखा चौहान, ओनर ऑफ माइंड्स लुक। थैंक यू अमित सर, थैंक यू रितिका मैम, थैंक यू स्काईलैब टीम, बहुत अच्छा वर्क करती है टीम। अमित सर का सपोर्ट इतना
Hey guys, so this अच्छा है, entire working episode consists अच्छी of है, time 5 से to पहले 6 ही अपना different काम कर phases, देते हैं और जितना कहते where हैं I'm उससे gonna explain you 6 different phases of understanding digital marketing process entirely. And before that, I'll also explain what is digital marketing. And this is a beginner's guide. ज़्यादा करते हैं और जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती पहले उसको समझाते हैं उसके बाद काम करते हैं। शब्दों में तारीफ की ही नहीं जा सकती। थैंक यू। ओनर ऑफ माइंड्सलूक। थैंक यू अमित सर, थैंक यू रितिका मैम, थैंक यू स्काईलैब टीम, बहुत अच्छा वर्क करती है टीम। अमित सर का सपोर्ट इतना अच्छा है, वर्किंग इतनी अच्छी है, टाइम से पहले ही अपना काम कर देते हैं और जितना कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं और जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती पहले उसको समझाते हैं उसके बाद काम करते हैं। शब्दों में तारीफ की ही नहीं जा सकती। थैंक यू। Manager in Kabul, Afghanistan. I took 3-month PhD training course and Mr. Amit was my trainer. During the training period, Mr. Amit was helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. Working as an IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3-month PhD training course and Mr. Amit was my trainer. During the training period, Mr. Amit was very helpful and completed training in friendly environment. I am really thankful to Mr. Amit. Thanks. शायद और भेजिए। Kumar Sithanan, working as an IT manager in Kabul, Afghanistan. I took 3-month PhD training. हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनोद पांडे यशम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा, जितने भी हमारे वीडियोस, हमारा फीडबैक्स था, हमारे एक्सपर्ट्स टीम के ये था जो हमारे डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेक्शंस पूरा संभालते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आप आज बहुत अच्छा समय है आप सबके लिए, क्योंकि आपको एक एक्सपर्ट ट्रेनिंग की तरफ से गाइडेंस मिलने वाला है। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी से कि अपना माइक म्यूट रखें ताकि कोई डिस्टरबेंस हमें ना आए। जो भी किसी के एंड से चल रहा है तो आप प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना आए। ओके, तो अभी बिना बढ़ के आगे बढ़ते हैं और विनोद यशम एकेडमी में फिर सभी का एक बार स्वागत करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आज हमारे जो एक्सपर्ट्स के लिए एक्सपर्ट ट्रेनर है और इस स्पेशल वेबिनार के लिए अमित सर, ठीक है। वेलकम अमित सर इन दिस वेबिनार, ओके। और सबसे पहले मैं थैंकफुल करना चाहूंगा कि जो आज के इस वेबिनार के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पे है सलमा मैम। तो सलमा मैम का थैंक यू करता हूं मैं सबसे पहले, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उनकी वजह से ही आज हमको मिली है और मैं इस पूरा वेबिनार को स्पेशल वुमन एम्पावरमेंट के तौर पे देखता हूं, ठीक है। तो स्पेशल थैंक्स मैम, वैसे करना चाहिए लेकिन ये होना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने पहले किया। उसी के साथ साथ उनके ही कलीग्स मिस्टर दीपक दास सर, साथ में मिसेस कविता दुबे मैम, राधिका साहू मैम और प्रीति दवनगान मैम, मैं सभी का वेलकम करता हूं इस वेबिनार में। इस वेबिनार का मेन पर्पस है हमारा वेब डेवलपमेंट। जो आजकल हम देखते हैं, आज हर फील्ड में डेवलपमेंट की बात होती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आईटी, और आप सभी आईटी स्टूडेंट्स हैं, हम सब आईटी से रिलेटेड है, इसलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, करेक्ट।
तो ये आईटी प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट रखता है, वो कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसीलिए आज हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। आपने देखा एक्सपर्ट्स के बारे में कितनी अच्छी अच्छी राय अभी हम लोगों ने सुनी। अराउंड द वर्ल्ड नंबर ऑफ क्लाइंट्स है जो पैन इंडिया पूरे घूमे हैं या बाकी भी जगह है, तो काफी एक्सपर्ट्स ट्रेनर है जो आपको अच्छा गाइड करेंगे। और स्टूडेंट्स के लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइडेंस ही होती है, ठीक है। तो हम हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमारे व्यूज वेब डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। आपके जो भी सवाल होंगे उस सवालों के भी जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। तो बिना रुकावट के मैं फिर से एक बार सभी को थैंक यू करते हुए आगे बढ़ता हूँ, सभी का वेलकम करता हूँ। वेलकम टू ऑल फ्रॉम यशम टीम। यशम टीम की तरफ से मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल दिख रहा है? कोई मुझे कंफर्म कर सकता है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो आज का जैसे हमारा वेबिनार है, सभी को पता है कि करियर इन वेब डेवलपमेंट पे ये वेबिनार है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के हमारे होस्ट हैं अमित सिन्हा सर। अमित सिन्हा सर 8 साल का जैसे एक्सपीरियंस है सर, डेवलपमेंट और ट्रेनिंग दोनों करते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स करने की है, प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। और क्लाइंट्स इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर के भी क्लाइंट्स हैं, अराउंड द वर्ल्ड नंबर ऑफ क्लाइंट्स है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फीडबैक देखा। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, करेक्ट? यस सर। मेरा स्क्रीन विजिबल? यस सर। फाइन, थैंक यू। और वर्किंग एक्सपीरियंस है सर का अच्छा, और फीडबैक जो हम देख रहे थे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स के तरफ से वो भी ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आगे का जो सेशन है, इस वेबिनार में हम क्या चाहते, क्या देना चाहते, तो मैं ये बता देता हूं कि जो वेबिनार का हमारा मेन मोटिव है कि वेब डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को पता चले, और वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन 2021, उसका इंपॉर्टेंस पता चले और उनके व्यू आए। इसलिए मैं अमित सर को इनवाइट करता हूं। अमित सर प्लीज। हेलो अमित सर, प्लीज आप गाइड कर रहे हैं? Yeah, hello. Yes. So, good morning, all of you. Yes, how are you all? Okay, I'm sharing my screen. Just a minute. Okay, I'm sharing my screen. Just a minute. Okay, please mute your calls. Vinod, please mute the calls. Yeah, आप सबको दिखा है स्क्रीन? Yes sir. Okay, thank you. Yes sir. Okay, I welcome everyone in the webinar. ठीक है, आज का जो वेबिनार होगा वो वेबसाइट डेवलपमेंट में है, जैसे विनोद ने बताया, ठीक है। ये वेबिनार आपके लिए है। जितने लोग आप इस वेबिनार में आए कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज म्यूट द कॉल्स। विनोद, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छे से वेबिनार को अटेंड कीजिए। आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, जैसे मैंने बोला, ठीक है। यदि आपके पास एक पेन और कॉपी हो तो आप प्लीज ले लीजिए, नोटबुक एंड पेन। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। इफ यू कैन प्लीज टेक अ कॉपी एंड पेन, क्योंकि आप कुछ सीख के जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ नोट करो, ठीक है। या विनोद, इफ यू वांट टू से समथिंग इन बिटवीन यू कैन से। यस सर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि बीच में किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन लेके आ सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस का जो भी आपका आंसर होगा हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। इन बिटवीन होता है तो, नहीं तो हमारा सेशन एंड होगा उससे पहले हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन हो सके तो तब के तब आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम आपके क्वेश्चनों का जवाब देंगे, ओके। और हो सके तो अपना माइक ऑफ ही रखिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेबिनार? आज हम लोग वेबिनार में क्यों आए हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हो तो
आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो या आप कैसे मतलब हाउ कैन यू अर्न. ओके, आई विल टेल यू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट. ठीक है, तो आज और मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द वेबिनार. ठीक है, तो मैं प्रॉमिस है कि आप पक्का कुछ सीख के जाने वाले हो. तो आई होप आपने कॉपी और पेन ले लिया है. करेक्ट? प्लीज से यस और नो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very good. Energetic. Yes, sir. And before I start the webinar, ठीक है, एडवांस में सबको वुमेन्स डे स्पेशल के लिए ओके, हैप्पी वुमेन्स डे. ठीक है, बिकॉज वुमेन्स इज द पावर ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, स्पेशल वुमेन्स डे आप सबको हैप्पी. ठीक है, हैप्पी वुमेन्स डे. ओके, नाउ Thank you, sir. Thank you very much. ओके ओके. अच्छा, मुझे कितने लोग, आप बताओ कि कितने लोग जानते हो कि वेबसाइट क्या होती है? कोई बता सकता है कि व्हाट इज अ वेबसाइट? आप स्क्रीन पे मत देखो, आप बताओ व्हाट इज अ वेबसाइट. किसी को पता है वेबसाइट क्या होती है? एनीवन? आप इतने सारे लोग हो. आप सब फेसबुक चलाते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम? यस और नो? Yes, sir. तो फेसबुक क्या है? फेसबुक क्या होता है? फेसबुक एक वेबसाइट होती है. ठीक है, इंस्टाग्राम क्या होता है? इंस्टाग्राम एक वेबसाइट होती है. ठीक है, तो व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस. ठीक है, जिसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है. मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन ओपन करता हूँ. एक सेकेंड, तो मैं आपको समझा के बताऊंगा, आप समझोगे. एक सेकेंड. ओके ओके, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन गाइस. ओके, आज का सबसे पहला टॉपिक है वेबसाइट. ठीक है, मैं स्लाइड के साथ साथ आपको समझाता भी होगा ताकि आपको समझ में आए. तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ पेजेस, जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया. इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस. पेजेस मतलब जैसे होम पेज होता है आपके फेसबुक पे, आपका अबाउट अस पेज होता है. ठीक है, आपके पोस्ट होते हैं, आपके वीडियोस होते हैं. तो व्हाट इज ऑल दिस? दीज आर पेजेस. सो कलेक्शन ऑफ पेजेस को क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे. ठीक है, वेबसाइट दो टाइप्स की होती है. दो टाइप्स की वेबसाइट होती है. एक आपकी होती है स्टैटिक वेबसाइट. ठीक है, और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट. कितने लोग को ये पता है स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट? बताइए. हाउ मेनी पीपल ऑफ नो अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक? एनीवन? यू कैन ऑल्सो कमेंट. आप कमेंट भी कर सकते हो. विनोद विल सी द कमेंट्स. यस, किसी को पता है कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक? यस यस, एनीवन? यस और नो? No, sir. नो? किसने यस बोला? यस. स्टैटिक मींस हाँ, सर, स्टैटिक मींस जो हमें, जो उसमें हम लोग कुछ रन ना कर सके, जो एज इट इज वो दे रहा है हम उसी पे ही मतलब उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं. और डायनेमिक जैसे हम लोग अभी रन टाइम में हम लोग कुछ भी जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, जावा, लिनक्स, कुछ भी, वो डायनेमिक वेबसाइट हो गई, आई थिंक सर. ओके, गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड. ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब हुआ कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो. अ वेबसाइट विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द यूजर. आपका स्कूल है, मान लो आपने एक स्कूल ओपन किया. आपके पास इतना पैसा नहीं, आपके पास इतना बजट नहीं है. ठीक है, तो आप क्या बनवा सकते हो? आप एक बनवा सकते हो स्टैटिक वेबसाइट. स्टैटिक वेबसाइट में क्या होगा कि जस्ट अ सेकेंड, या स्टैटिक वेबसाइट मतलब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता. आपको कोई फोटो चेंज करनी है, ठीक है, या आपको कोई भी अपना कंटेंट चेंज करना है, तो आप ये नहीं कर सकते हो. नॉट पॉसिबल. ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि इट इज अ शो ऑफ वेबसाइट जिसमें आप कस्टमर को सिर्फ शो करते हो. ठीक है, कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते. तो इसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट. क्लियर है? यस और नो? कोई बता सकता है कि मैंने क्या समझाया स्टैटिक वेबसाइट? एनीवन? यस, आई वांट एनर्जी प्लीज, पॉजिटिव एनर्जी. यस सर. मैंने क्या? यस, टेल मी. या टेल मी डियर, व्हाट इज स्टैटिक? बताइए. स्टैटिक मींस जिसमें हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. हाँ हाँ, यस यस. कोई चेंजेस नहीं कर सकते. कोई चेंजेस नहीं कर सकते. हाँ, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. आपको फोटो चेंज करनी है अपने स्कूल की, तो आपको डेवलपर को कॉल करना होगा जिसने वेबसाइट बनाई होगी. ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? स्टैटिक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आपको HTML आना चाहिए,
CSS आना चाहिए और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये बेसिक है स्टैटिक वेबसाइट को सीखने के लिए, ठीक है। आजकल 90% केसेस में डायनेमिक वेबसाइट बनती है, जो आप लोग सीखने आए हो, जिसको बोलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। आज का हम लोग का मोटिव क्या है? वेबसाइट डेवलपमेंट। तो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के लिए आप क्या बनाते हो? आप जब सीख लेते हो तो आप क्या बना सकते हो? डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? एक ऐसी वेबसाइट, जैसे मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ, अ वेबसाइट विच कैन बी मॉडिफाइड बाय यूजर। एक ऐसी वेबसाइट जो कस्टमर क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। लाइक फेसबुक। फेसबुक क्या है आपका? स्टैटिक या डायनेमिक है? बताइए। डायनामिक डायनेमिक, हाँ डायनेमिक क्यों है? क्योंकि आप अपनी फोटो चेंज कर सकते हो, आप कोई पोस्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो वेबसाइट जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। एक ऐसी वेबसाइट जिसमें डेटाबेस होता है। डेटाबेस पता है? डेटाबेस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कीजिए प्लीज। प्लीज नोट इन योर कॉपीज व्हाट इज द डेटाबेस। डेटाबेस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। आजकल पूरी दुनिया में सब कुछ डेटाबेस है। आपका व्हाट्सएप से लेके, आपका फेसबुक से लेके, आपका इंस्टाग्राम से लेके, सब कुछ डेटाबेस है। आप अपना फोन फॉर्मेट करते हो मगर फिर भी आपका डेटा वापस आ जाता है, बैकअप आ जाता है, ठीक है। आपका फेसबुक का डेटा कहीं नहीं जाता, 10 साल पुराना देख लो। क्यों? क्योंकि ये सब कहाँ पे सेव है? डेटाबेस में सेव है, ठीक है। तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है? डेटाबेस होता है। यस और नो क्लियर है? पक्का? आई वांट पॉजिटिव एनर्जी। तो बताइए। गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। यदि आप, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, प्लीज गिव अ थम्स अप। थम्स अप का वहां पे सिंबल है जूम पे। पक्का? क्लियर है? ओके, तो मुझे बताइए व्हाट इज अ डायनेमिक वेबसाइट? आई वांट समवन टू रिपीट। मैंने क्या बताया? व्हाट इज अ डायनेमिक वेबसाइट? जिसे मतलब मॉडिफाई किया जा सकता है, अपने फोटो को चेंज कर सकते हैं। यस, गुड। व्हाट एल्स? एंड इज सबसे अ इंपॉर्टेंट कनेक्टेड, पॉइंट, मतलब या उसमें डेटाबेस होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। योर गुड नेम प्लीज, योर गुड नेम? वैशाली वर्मा। या वैशाली ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है। ये मत भूलिएगा कि डेटाबेस जिसमें होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। ओके, तो डायनेमिक वेबसाइट को सीखने के लिए आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज चाहिए? व्हाट टेक्नोलॉजीज यू नीड? क्योंकि आज सबसे ज्यादा जॉब, 90% या 95% जॉब्स आज आज के जमाने में आपकी डायनेमिक वेबसाइट में है, ठीक है। यदि आपने टेक्नोलॉजी सीख ली अच्छे से, आपको बहुत आराम से जॉब मिल जाएगी। आप खुद एज अ फ्रीलांसर भी जो काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पीपीटी में एक स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ। सी, मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज लाइक फेसबुक, याहू, ठीक है, ये सब इतनी सारी जॉब्स निकल रही है डायनेमिक वेबसाइट। यदि आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हो जिसका कोई एंड नहीं है, तो यदि आप फेसबुक जैसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो या कोई भी ऐसी कंपनी जिस जॉब का सपना है, बहुत आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन के बाद आप सबको पता है कि लॉकडाउन कैसा गया, ठीक है। कोविड-19 में कितनी प्रॉब्लम्स आई, हम सब ने फेस की, मगर एक पॉजिटिव चीज हुई हम सबके लिए, क्या? कि वेबसाइट डेवलपर्स का स्कोप बहुत ज्यादा हो गया। लॉकडाउन से पहले इतना नहीं था। आफ्टर लॉकडाउन आप यकीन नहीं करोगे 70% जॉब्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। किसके लिए? वेबसाइट डेवलपर्स के लिए, क्योंकि सारा बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सब्जी वाला से लेके एक स्कूल से लेके सब कुछ ऑनलाइन है आज के जमाने में। तो ऑनलाइन है तो वेबसाइट बनाएगा कौन? कौन बनाएगा वेबसाइट? आप लोग बनाओगे ना, जिसको वेबसाइट बनाना आता है, डायनेमिक वेबसाइट। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि यू कैन, इफ यू लर्न, यू कैन वर्क इन अ जॉब, यू कैन गेट गुड जॉब्स, ठीक है। सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अच्छे से सीखो। तो वेबसाइट, मैंने जैसे बोला कि डायनेमिक वेबसाइट को सीखने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए, मैं एक मिनट स्लाइड दिखाता हूँ, या PHP, पाइथन, ये दोनों बहुत ही ट्रेंडिंग है। PHP एंड पाइथन। अभी मैं एंगुलर की बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये एडवांस के लिए है जिनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट you have to learn either PHP or you need to learn what? Either Python. दोनों में से कोई एक टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए और बहुत आराम से जॉब लग जाएगी। बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है यदि आप सीख लेते हो, ठीक है। यदि मैं थोड़ी PHP की बात करता हूँ तो फेसबुक, आप सब लोग ये आइकन जानते होंगे,
बहुत ही फेमस है, बच्चा बच्चा जानता है, फेसबुक। तो फेसबुक किस में बनी है आप जानते हो? फेसबुक व्हाट इज द टेक्नोलॉजी जिसमें फेसबुक डेवलप हुई है? PHP। इसको कॉपी में लिख लीजिए, ओके? फेसबुक इज डेवलप्ड इन PHP। इतनी बड़ी कंपनी, $1 मिलियन कंपनी क्या यूज करती है? PHP यूज करती है, ठीक है? यदि आपको PHP आती तो आप फेसबुक जैसी कंपनीज में जॉब कर सकते हो, आप खुद का फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, ठीक है? तो PHP में कई चीजें आती है, जैसे कोर PHP होता है, PHP oops होता है, वर्डप्रेस होता है, लारावेल होता है, ये सब कुछ हम आपको सिखाते हैं, ठीक है? इसकी अधिक जानकारी आपको विनोद देंगे, इसमें क्या क्या कवर्ड होगा, बट अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? It's I think 2 or 3 months course, ठीक है? After learning this, you can easily develop any dynamic website, ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा मैं PHP की और बात करता हूँ, क्योंकि मैं PHP पे भी आया हूँ। तो what is PHP? PHP is used to develop what? Dynamic website। आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो आप क्या यूज कर सकते हो? PHP यूज कर सकते हो, ठीक है? और क्या होता है PHP? कोई जानता है PHP के बारे में? किसी ने सुना है? बताइए। यस सर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग PHP के लैंग्वेज बारे है, अच्छा। और बताइए, और कोई? इतनी फेमस क्यों है PHP? Why PHP? Anyone knows why PHP is so famous? आप सब लोग इजी होती है, कोडिंग इजी होती है, चलो एक पॉइंट मैंने नोट किया, इजी कोड, इजी टू कोड। और कोई? सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ बोलिए बोलिए। यस, यूजर उसको जैसे यूज करना चाहता है, मतलब उसके लिए कोई सिंटेक्स प्रॉपर कुछ नहीं, अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आया। लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है? स्क्रिप्ट लैंग्वेज। हाँ देखिए, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो आप, या तो आप बोल सकते हो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है? ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया। मैंने पूछा PHP इतनी फेमस क्यों है? सबसे पहली बात है कि PHP बहुत ही फास्ट है। आप सब लोग फेसबुक यूज करते हो, करेक्ट? आप खुद बताओ कि फेसबुक कितना फास्ट है? विदिन अ सेकेंड्स लोड होता है, जबकि कितना डेटा है फेसबुक के पास? $1 मिलियन, इतने लोगों का डेटा है, फिर भी इतना फास्ट है। तो PHP इज वेरी फास्ट लैंग्वेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, PHP इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का क्या मतलब है? कॉपी में नोट कीजिए। आई वॉन्ट कि प्लीज टेक अ कॉपी एंड पेन, जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, प्लीज टेक अ कॉपी एंड पेन, ठीक है? मैं PHP का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है? और जिनके पास ऑलरेडी कॉपी एंड पेन है, प्लीज अपने इसको नोट कीजिए। वाई PHP इज सो फेमस? तो PHP क्या होती है? PHP एक डायनेमिक वेबसाइट के लिए यूज होती है, ठीक है? PHP क्यों फेमस है? जैसे बताया गया कि PHP बहुत ही आसान है, PHP बहुत ही फास्ट है, एंड PHP क्या होती है? मल्टीपर्पज होती है। मल्टीपर्पज मतलब आप ब्लॉग बना सकते हो, आप इसमें वेबसाइट बना सकते हो, आप अमेजन में शॉपिंग करते हो, आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है? आप अमेजन जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक स्टूडेंट है अब्दुल, आज वो नहीं है वेबिनार में, ठीक है? बट उसने ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी मुझसे सीखने के बाद, PHP सीखने के बाद, और आज उसका बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है। विनोद प्लीज म्यूट द कॉल्स, विनोद। या तो आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, आप ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है? आप कुछ भी बना सकते हो PHP सीखने के बाद, कोई भी ऑनलाइन आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है? सो विच आई विल टीच यू आफ्टरवर्ड्स, ओके? सो दिस इज व्हाई PHP इज सो फेमस। और PHP का लेटेस्ट वर्जन क्या है? कोई बता सकता है लेटेस्ट वर्जन और PHP? एनीवन? सो PHP का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है PHP 8। कॉपी में नोट कीजिए, PHP 8, ठीक है? तो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ PHP, ओके? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज PHP। आया कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? आपको बताइए, बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। यस, कोई भी पूछना है PHP से रिलेटेड, मैंने जो बताया अभी। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, प्लीज। देखिए, पूछने में हिचक मत कीजिए, ठीक है? आप पूछोगे तो आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, ठीक है? यू आर नॉट हेयर टू जस्ट लिसन, यू आर हेयर टू लर्न समथिंग। सीखने के लिए पूछना पड़ेगा ना? प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चंस टू PHP और वेबसाइट डेवलपमेंट। यस,
क्लियर है? पक्का क्वेश्चन नहीं है मतलब क्लियर है? सर अच्छा PHP में नेक्स्ट। टेक्नोलॉजी की वो बहुत हमें दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इतना फास्ट वो प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, आप ये समझो कि PHP इतनी फास्ट है कि आप सब लोग जीमेल यूज करते होगे या आप सब लोग इससे पहले गूगल प्लस यूज करते होगे या ऑर्कुट। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ऑर्कुट याद है कि नहीं, ठीक है। ये गूगल प्लस ऑर्कुट फेल हो गया और फेसबुक इतना अचानक से फेमस हो गया, क्यों? आप बहुत ही स्लो था ऑर्कुट, यदि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में फास्ट था मगर जैसे डेटा उसके ऊपर इंक्रीज होता गया अचानक से ऑर्कुट क्या हो गया, स्लो हो गया, ठीक है। आप खुद बताओ कोई स्लो वेबसाइट पे आप जाओगे कि आपके सामने आपके सामने में, हाँ बिल्कुल, आपके सामने मैं 2 वेबसाइट ओपन कर दूं, एक बहुत ही स्लो है एक बहुत ही फास्ट है और दोनों का काम एक ही है, तो आप किस पे जाओगे? आप उस पे जाओगे ना जो फास्ट है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप नहीं चाहते कि बैठ के आप वेट करो। तो इसलिए PHP फेमस है कि ये फास्ट है, जैसे मैंने बताया ये मल्टीपर्पस है, ठीक है। आप दुनिया की हर चीज उसमें बना सकते हो, ठीक है। और यकीन मानो एक बार आप सीख लोगे ना हमसे तो कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हो। हम प्रोजेक्ट में आपको पूरा इसमें काम करवाएंगे, इसमें हम पूरा एडमिन पैनल बताते हैं, हम पूरा फ्रंट एंड बताते हैं कि कैसे बनेगा एक टोटल फुल रेडी डायनेमिक वेबसाइट आप बनाओगे अपने हाथों से। ये नहीं कि रेडीमेड में आपको दे दूंगा, आप खुद बनाओगे इसको। और जो कॉन्फिडेंस और जो खुशी आपको मिलेगी ना, आप खुद फीडबैक हमें देके जाओगे, सर मैं कुछ सीख के आई हूँ या मैं कुछ सीख के आया हूँ, ठीक है। आई होप आप सबके अंदर एनर्जी आ गई होगी। ओके, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ पाइथन की। ये तो बात होगी PHP की। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है? पाइथन। अच्छा, लॉकडाउन में कितने लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा? सच बताना। नेटफ्लिक्स आपको पता होगा, नेटफ्लिक्स कई लोगों को, मुझे लगता है। यस सर। व्हाट इज नेटफ्लिक्स? ये वेब सीरीज होता है, ठीक है। ज्यादातर इसमें वेब सीरीज आती है, ठीक है। इतनी फेमस है, समझो लॉकडाउन में तो इसका इतना व्यूज बढ़ गया कि $1 मिलियन उसने कमा लिया। तो नेटफ्लिक्स इसमें बनी है, नेटफ्लिक्स बनी है आपकी पाइथन में। पाइथन इज अ एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स। तो आप ये समझो कि एक तरफ आपका फेसबुक है जो PHP में बनी है और एक तरफ आपका नेटफ्लिक्स है जो किस में बनी है? पाइथन में बनी है। कोई दूसरी लैंग्वेज या कोई तीसरी लैंग्वेज कैसे टक्कर दे सकती है इसको, जब दोनों ऑलराउंडर बैठे हैं, दोनों ऑलराउंडर बैठे हुए हैं जो दुनिया में छाए हुए हैं। तो आप खुद बताओ कि आप PHP पाइथन सीखना चाहोगे या आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाहोगे जिसका कोई स्कोप नहीं है? आप मुझे आंसर दो। एक्साइटेड हो सीखने के लिए पाइथन एंड PHP? ठीक है। पाइथन क्या होती है थोड़ा सा मैं, यस गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट। या जस्ट अ मिनट, या अब तो मैं पाइथन की बात कर लेता हूँ। पाइथन में सिर्फ वेबसाइट नहीं बनती, देखो पाइथन क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सबसे पहली बात कॉपी में नोट कीजिए, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर 1। अच्छा, जितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं बता दूं कि मैं रिपीट कर दूंगा जो मैंने बताया, ठीक है। प्लीज टेक अ कॉपी एंड पेन, लाइक प्रियंका चौधरी ने अभी ज्वाइन किया है। प्लीज प्रियंका टेक अ कॉपी एंड पेन, ओके। I'm just giving introduction of PHP and Python यहाँ पे and website development. Please take a copy and pen. तो Python का एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे मैंने बताया, ओके। विनोद प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक अ कॉपी एंड पेन, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यस, सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आप सभी को नॉलेज देना, ठीक है। हम लोगों का मेन फोकस है आप लोगों को नॉलेज देके आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस कराए और आपको वेब डेवलपमेंट सिखाना है, ठीक है। तो कोई भी मौका मत छोड़िए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, ठीक है। एक्सपीरियंस ट्रेनर है, एक्सपीरियंस अच्छा परफॉर्मेंस है और सब चीज, आपके हर सवाल का जवाब देने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, मैक्स टू मैक्स कोशिश करेंगे। मैं हूँ, सर है और भी एक्सपर्ट्स है जो आपके सवालों को जरूर जवाब देंगे, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए, इन कुछ भी बिटवीन में कोई भी लगता है आपको तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन तभी पूछोगे जब आपका फोकस होगा, ध्यान रहेगा और ट्रेनिंग जो भी सर बता रहे टॉपिक उसके ऊपर बिल्कुल गौर कीजिए, ठीक है। जहां पे आप अटक रहे हो वहां पे बिल्कुल पूछिए। ओके, थैंक यू। ओके, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वेलकम, ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन।
जैसे मैं अभी बता रहा था कि आज का जो वेबिनार होगा वो मैं उसमें वेबसाइट बता रहा हूँ कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट का क्या स्कोप है, क्या टेक्नोलॉजीज आप सीखते हो। कई लोगों ने अभी सुना कि मैंने क्या बताया। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं छोटा सा रिकैप कर देता हूँ कि देखो वेबसाइट क्या होती है, कि वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। इस डायनेमिक वेबसाइट में डेटाबेस होता है। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है बताइए, मैंने क्या बताया, प्लीज रिपीट। यस, व्हाट इज collection of data. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, स्पेशल थैंक्स कि आप सब लोग अच्छे से सुन रहे हो। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट सीखने के लिए आपको, यदि आपको डायनेमिक वेबसाइट बनाना सीखना है तो आपको PHP आनी चाहिए, आपको पाइथन आनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मैं एक बार इस पे Ctrl+Z कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि PHP क्या होती है, PHP यूज होती है, यूज्ड फॉर मेकिंग डायनेमिक वेबसाइट। तो PHP आपका डायनेमिक वेबसाइट के लिए यूज होती है। PHP इतनी क्यों फेमस है, क्योंकि बहुत ही आसान है सीखना, बहुत ही फास्ट है। फेसबुक कितनी फास्ट है आप सब जानते हो। ठीक है, मल्टीपर्पज है, मतलब आप ब्लॉग, वेबसाइट, ई-कॉमर्स, अमेजन जैसी आप कुछ भी बना सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि इसमें हम आपको पूरा डायनेमिक वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। डायनेमिक वेबसाइट बनाना मतलब पूरा एडमिन पैनल में आपको सिखाऊंगा, मैं पूरा फ्रंट एंड आपको सिखाऊंगा कैसे आप बनाते हो। तो टोटल आप एक वेबसाइट डेवलपर एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी, बट यदि मैं आपके साथ हूँ तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया पाइथन। तो पाइथन का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, नेटफ्लिक्स। आप सब लोगों ने नेटफ्लिक्स में हो सकता है वीडियोस देखते हो या आपने कभी देखा हो। तो नेटफ्लिक्स किस में बनी है, पाइथन में बनी है। तो मैं बताया था पाइथन क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? हाँ, पाइथन सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज होती। ठीक है, पाइथन वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए तो होती है, बट सिर्फ इसके लिए नहीं होती। पाइथन के आप मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो। ठीक है, पाइथन हैज मशीन लर्निंग हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब में भी बहुत अच्छा स्कोप है पाइथन का। ओके, सो पाइथन इज ऑल्सो कॉल्ड, आप भी इसको भी कह सकते हो मल्टी लैंग्वेज। मल्टीपर्पज नहीं कह सकते हो आप, इसको कहते हो मल्टी लैंग्वेज। मल्टी मतलब वेबसाइट में भी यूज होती है, मशीन लर्निंग में भी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, मतलब इसके बहुत सारे यूज है। ओके, और पाइथन में इसका एक फ्रेमवर्क आता है, इसको पहले कॉपी में नोट कीजिए प्लीज, प्लीज नोट इन योर कॉपीज, व्हाट इज अ पाइथन। तो पाइथन इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी लैंग्वेज समटाइम्स। ओके, प्लीज नोट इन योर कॉपीज। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है मुझसे पूछ सकता है, अभी जिसने ज्वाइन किया है, या किसी को भी कुछ भी पूछना है प्लीज बताइए। नो क्वेश्चंस? सर हाँ बताइए। सर ये डायनेमिक, आपने बोला ये डायनेमिक वेबसाइट, इसमें पाइथन में सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, पर इसमें सिर्फ हम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टीपर्पज लैंग्वेज यूज करते हैं। हाँ, मैंने ये बताया कि पाइथन में आप वेबसाइट भी बना सकते हो, और यदि आपको दूसरे फील्ड पे जाना है लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका काम बहुत कुछ है, इसकी एक लिमिट नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट बना सकते हो आप, इसमें बहुत कुछ। डायनेमिक वेबसाइट इसमें क्रिएट होता है पाइथन में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा था। इसका एक फ्रेमवर्क आता है जेंगो, ये इसका फ्रेमवर्क होता है। इसका काम क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट बनाना। ठीक है, जस्ट अ मिनट। या तो आपको यदि डायनेमिक वेबसाइट बनाना है तो आप पाइथन में, तो आपको क्या आना चाहिए, जेंगो आना चाहिए। सो जेंगो क्या होता है, एक पाइथन का फ्रेमवर्क होता है। तो जैसे मैं अपनी स्क्रीन देख रहे होगे, तो इसमें पाइथन में हम दो चीजें सिखाते हैं। एक पहले तो
कोर पाइथन सिखाते हैं जो बेसिक है। इसके बाद हम सिखाते हैं जेंगो फ्रेमवर्क। यदि आपने जेंगो और पाइथन दोनों कर लिया तो आप अच्छे से एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप PHP सीख सकते हो या तो आप पाइथन, या तो दोनों आप सीख सकते हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो दिस इज अपॉन यू। और जैसे मैंने अभी बताया कि लॉकडाउन की वजह से वेबसाइट, एक चीज अच्छी हुई है कि वेबसाइट डेवलपमेंट का स्कोप बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, बहुत सारी जॉब्स आ चुकी है इस समय मार्केट में। ओके, सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम अ वेबसाइट डेवलपर। ठीक है ना? आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हो। एनीवन? यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। PHP से, पाइथन से या कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। यस और नो? क्लियर है? मैं एक छोटा सा रिकैप लूं, टेस्ट लूं मैं आप लोग का। हेलो। हाँ बताइए बताइए। हाँ बताइए। हाँ सर, आई हैव अ क्वेरी। या प्लीज आस्क सर मी। एआई का यूज, एआई में पाइथन का क्या रोल है सर? आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा ये बताइए AI होती क्या है, आपको पता है? व्हाट इज AI? यस सर, बस यही आर्टिफिशियल क्या आर्टिफिशियल होती है? इंटेलिजेंस सर, थोड़ा थ्योरी जैसा पढ़ा है बट बेसिक उतना क्लियर नहीं है सर बस। तो इसका यूज जानना है क्योंकि आज जो एडवांस अभी जो चल रहा है टेक्नोलॉजीज, उसमें एआई का यूज बहुत होने वाला है। इतना ही पता है सर। तो इसमें पाइथन क्या देखो, रोल प्ले करने वाला है, तो ये थोड़ा समझना है सर। हाँ देखिए, AI का मतलब क्या हुआ, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। दिस इज अपार्ट फ्रॉम अ वेबिनार, बट मैं आपको बता देता हूँ AI क्या होता है। AI का सिंपल सा मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आपको पता ही है। होता क्या है AI? आप मान लो आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, हाउ टू कुक शाही पनीर। एग्जाम्पल में ले, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, हाउ टू कुक शाही पनीर। ठीक है, इसके बाद आपने नोटिस किया होगा, कभी भी आप अपना फेसबुक खोलो तो आपको हर जगह उसी टाइप की वीडियो नजर आती है। सजेस्टेड वीडियोस में आपको वही नजर आता है। आपने कभी नोटिस किया ये चीज कि कभी कि आप कुछ भी सर्च करो, यदि आप सर्च करते हो मान लो PHP, यूट्यूब पे आप सर्च करते हो PHP, तो आपको फेसबुक पे हर जगह PHP नजर आता है। तो AI का क्या मतलब होता है कि ये आपके माइंड को रीड करता है, ये आपके माइंड को कि आप क्या आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, आप जैसे मॉल में जाते हो, फॉर एग्जांपल में ले आओ, आप मॉल में जाते हो, ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है। ये क्या है? उसको कैसे पता लगता है कि आप आए हो? तो ये काम किसका है? आर्टिफिशियल। सेंसर्स लगे होते हैं, बट सिर्फ सेंसर का काम नहीं होता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम होता है। रोबोटिक्स क्या है? पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस्ड है। ठीक है, तो AI सीखने के लिए AI का कई कोडिंग हम लोग पाइथन में भी करते हैं। ठीक है, इसका यही काम है, बट इसका मेजर काम वेबसाइट डेवलपमेंट में भी है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जॉब्स इसकी निकल रही है आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है, क्लियर है आपको? यस, एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। यस सर, ओके, थैंक यू सो मच। या वेलकम। किसी का और भी कोई क्वेश्चन हो मुझे पूछ सकते हैं। तो देखो, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीखोगे, सीखने के साथ साथ आपको डेली नोट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि जो आपने प्लीज म्यूट द कॉल्स विनोद। ओके, तो ट्रेनिंग का बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको डेली नोट्स मिलने वाले हैं, आपको डेली असाइनमेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको कभी भी लाइव क्लास में कोई दिक्कत हो आप तुरंत पूछ सकते हो। आफ्टर द क्लास भी कोई दिक्कत हो तो हमारी टीम उसके लिए बैठी हुई है। ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपका PHP और पाइथन में। विनोद, यू कैन प्लीज कंटिन्यू। विनोद। Ritika, mute the mic, please. यस विनोद। Yes, Vinod, you can please continue. Okay. Hello. Sorry, sir. तो मैं भी थोड़ा Yes, sir. Can I repeat? Please continue. Please continue. Yeah. Please. Just a minute. मेरी स्क्रीन शायद चली गई है. Just a minute. Okay. Yes, Vinod, आप बोल सकते हो. Yes. तो यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा लगा है कि सब कुछ क्लियर है. Yes or no? सर जो मशीन लैंग्वेज होती है, हाँ,
उसको भी पाइथन में लिखा जाता है। हाँ, मशीन लर्निंग यदि आपको सीखना है तो आप पाइथन कर सकते हो, बट मैंने अभी बोला कि अभी इस समय सबसे ज़्यादा इसको वेबसाइट डेवलपमेंट में है, PHP और पाइथन दोनों का, एज पर एज जॉब एंड एज पर एज फ्रीलांसिंग इज कंसर्न्ड। ठीक है, वैकेंसीज बहुत निकल रही है। ठीक है, और बाकी हाँ, इसका स्कोप है जैसे आपने बताया। देखिए, मैं इस बारे में बता सकता हूँ कि पाइथन एक मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, करेक्ट। तो वो उसका यूज बहुत है हर जगह, जैसे आप लोग बोल रहे हो, करेक्ट, एकदम 101% करेक्ट है कि मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर जगह यूज है। तो जब आपको कोर पाइथन और एडवांस पाइथन आ जाता है, उसके बाद में का एडिशनल कंसेप्ट है मशीन लर्निंग में, तो बहुत सारा कंसेप्ट है। आज हम देखते हैं रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में भी पाइथन क्यों ज्यादा चल रहा है, उसके पीछे इंपॉर्टेंस है। पाइथन में ऐसे बहुत सारे नए कंसेप्ट है, मिनिमम कोडिंग मैक्सिमम लॉजिक, ऐसा कंसेप्ट है पाइथन का। ठीक है, तो पाइथन का एक अलग इंपॉर्टेंस है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी पुराना है, लेकिन उसको प्रमोट नहीं हुआ, अभी के कंडीशन में ज्यादा प्रमोट हो रहा है और ज्यादा डिमांडेड भी है और चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोर और एडवांस पाइथन थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आप कैप्चर कर ले, तो देन फिर आप डाइवर्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ करियर क्रिएट करना है। ठीक है, आज के कंडीशन में पाइथन हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म के तौर पे, जैसे बार बार बोला जा रहा है, वेब डेवलपमेंट में भी है, मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी यूज हो रहा है, मशीन लर्निंग में भी यूज हो रहा है, AI में भी यूज हो रहा है। तो इसलिए इसको बोला ही गया है, पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट। ओके, मैं आई होप आपको सो बता दूं कि कि शायद सभी को क्लियर होगा। या विनोद, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आपको मशीन लर्निंग भी सीखना है, कुछ भी सीखना है, आपको सबसे पहले कोर पाइथन आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोर पाइथन के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ, बताइए बताइए। यस, बराबर, वही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है कि आपको अगर बेस आपका क्लियर होगा तो आप एडवांस फीचर्स सीख सकते हो। हर एक लैंग्वेज का एक यूनिक फीचर्स है, बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बस उसको पहुंचने के लिए आपको एक बेसिक कंप्लीट करना होता है। वो बेस अगर आपका कंप्लीट है और स्ट्रांग है, तो फिर आप आगे बिल्कुल डेवलप कर सकते हो और बिल्ड कर सकते हो। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि PHP का इक्वली इंपॉर्टेंस है, क्योंकि PHP का मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर टू पाइथन बहुत वैकेंसीज है, बहुत वर्क है। मतलब इतनी सारी वैकेंसीज है कि मतलब हर शहर में बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है। तो आप दोनों सीख सकते हो, जैसे मैंने बोला, पहले PHP कर लो, बाद में पाइथन कर लो, या पहले पाइथन कर लो, बाद में PHP कर लो। करेक्ट विनोद? या यस यस यस, ओके, यस विनोद। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? सर, अगर कोई स्टूडेंट पाइथन PHP के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो स्टार्ट करे, तो उसे मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा उसे बहुत अच्छे से सीखने में? मैं आपको बता दूं एक छोटा सा एग्जांपल कि मैं एक स्टूडेंट था, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। ठीक है, उसने 4 साल बीटेक किया, उसने 2 साल जॉब किया मैकेनिकल में, उसको प्रोग्रामिंग का पी नहीं आता था। हमने उसको 3 महीने के अंदर एक्सपर्ट बना दिया PHP में। आज वो मल्टीनेशनल कंपनी में IT मैनेजर है। ठीक है, तो मैं कहने का ये मतलब है कि यदि आपको नॉलेज नहीं भी है तो हम उसके लिए बैठे हैं। 3 महीना सफिशिएंट है। ठीक है, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए ओनली 3 महीना आप मुझे दे दो, मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। करेक्ट विनोद? यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ 3 मेजर कोर्सेस है जो स्पेशली हमने वेब डेवलपमेंट पे डिजाइन किए हैं। ठीक है, जहाँ पे हम आज 3 स्किल्स को फोकस कर रहे हैं। तो एक है वेब डेवलपमेंट इन PHP, दूसरा है वेब डेवलपमेंट इन पाइथन, और तीसरा है वेब डेवलपमेंट इन एंगुलर। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो कंसेप्ट है, ये सब वेब डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, आज इस कोर्सेज की वैल्यू अगर हम देखें मार्केट में, तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जॉब के लिए पकड़ो, स्किल्स के लिए, या फिर प्रोजेक्ट वर्किंग के लिए। हमारा जो पढ़ाने का तरीका और वे है, वो एडवांस तरीके से है। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग आगे बढ़े, डेवलप हो, और उनको रियल प्रोजेक्ट वर्किंग कर सके। ठीक है, तो इस मोटिव ही हमारा वो है कोर्सेज के पीछे, कि आप लोगों तक पूरा का पूरा नॉलेज मिले और अच्छा डेवलपमेंट करके आप आगे बढ़ सके। ठीक है, तो हम लोग ये स्पेशल डिस्काउंट लेवल पे आपको कोर्स अलाउ करेंगे। जो स्पेशल वुमेन डिस्काउंट है आज का 60% से भी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर हम दे रहे हैं।
स्पेशल वुमेन डे ऑफर पे। ओके, तो ये कितना अमाउंट होगा क्या होगा वो तो हम लास्ट में आपको बताएंगे, थोड़ा आपको वेट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन बहुत ज्यादा ऑफर है। ऑफर किस लिए, स्पेशली इसीलिए है कि वुमेन्स डे है। ओके, और मेन मोटिव है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन बने और स्टूडेंट एम्पावरमेंट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो फोकस हमारा यही होना चाहिए कि आप लोग सीखें और सीख के आगे बढ़े और आपके पास स्किल जमा हो और उस स्किल से आप अच्छी सैलरी, अच्छा जॉब बिल्कुल आपके पास आ सके, हासिल कर सके आप। तो यही हमारा मेन मोटिव है। मेन मोटिव मतलब हमको खाली आपको 2 चीज बता के छोड़ना नहीं है, हमको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको देना है, पूरा कोर्स बता के आपको अच्छी जॉब भी ऑफर करनी है, ठीक है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो हम भी आपको बिल्कुल नौकरी दे सकते हैं। अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो आपको बिल्कुल देंगे। और हमसे क्यों कनेक्ट करोगे आप, हम जैसे अभी आपको सिखाने का तरीका हम बता ही रहे, हमारे पास लाइव क्लासेस है, हम डेली क्लासेस लेते हैं, कंटिन्यू क्लासेस होते हैं, डेली नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जॉब अलर्ट्स भी देते हैं, क्योंकि आज हर एक कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसको जॉब मिले, कोर्स के बाद में जॉब मिले, तो वो जॉब अलर्ट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और लाइफ टाइम सपोर्ट, मतलब खाली बस आज कोर्स हो गया तो खत्म हो गया ऐसा नहीं है, उसके बाद में भी हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद में भी आपका कुछ क्यूरीज होते तो भी हम रिजॉल्व करेंगे और आपको बिल्कुल जॉब अलर्ट्स के लिए सपोर्ट करेंगे, ठीक है सर। यस सर, आपके जो कोर्सेस है वो लाइव ही रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा? हाँ जी, अभी तो हम पूरा लाइव चला रहे हैं, करेक्ट। अभी हम लाइव कोर्सेस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हैं। ओके, तो ऑफलाइन नहीं, हम ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं। ओके, ऑनलाइन ही सब कोर्सेज चला रहे हैं, करेक्ट। अगर हाँ, वो कब पॉसिबल हो सकता है वो बात की बात है। अगर हम ट्राई करेंगे, अगर एक पूरा बैच बनता है आपके कॉलेज में तो फिर बात बनती है, तो फिर हम वहां पे भी आके सिखा सकते हैं। वैसे आप टेंशन मत लो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। एकदम ऐसा लगेगा कि क्योंकि मैं लाइव ट्रेनिंग लूंगा, आप सबके साथ एक एक बच्चे से मैं इंटरेक्ट करूंगा, तो आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप ऑनलाइन कर रहे हो। तो दिस इज आवर प्रॉमिस। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम एक दिन का आपको लिए डेमो क्लास भी जरूर रखेंगे सर, करेक्ट। एक दिन का डेमो क्लास रख देंगे ताकि आप स्टूडेंट्स को, किसी को भी ऐसा डाउट ना लगे और आपको पूरा प्रैक्टिकल किस तरह से होता है, किस तरह से सर समझाएंगे, किस तरह से हमारे असाइनमेंट होंगे, ये सब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया लोगों को? आप सबको कुछ सीखने को मिला कि नहीं? यस सर, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, एक्सक्यूज मी सर, अमित सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर एक छोटा सा डेमो लाइव अगर अभी हो सके, छोटा सा डेमो सर। यस यस यस, ओके फाइन, नो इश्यूज। ओके, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, डेमो क्लास किस में आप लोग चाहते हो, पीएचपी में या पाइथन में? कितने लोग? एक बार मैं वोटिंग देखना चाहता हूँ। पीएचपी में करना चाहते हो? अच्छा, चलो 50-50 कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं। पहले तो आप पीएचपी फिर तो आप पाइथन, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो मैं अगले 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए। चलिए, लाइव सेशन मैम ने बोला है, आई एम रेडी फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। जब तक आप विनोद आप बोल लो, मैं 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। मैं जब तक चाहता हूँ कि लोग कॉपी और पेन ले ले। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे पूनम मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। पूनम मैम, तब तक आप आपका 2 मिनट्स वाला जो व्यू है जो हमने डिसाइड किया है वो आप रखिए प्लीज। हेलो। यस सर। हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? हेलो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पूनम मैम प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। पूनम मैम। गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सभी लोग? आई एम फाइन। मैं कुछ मोटिवेट करना चाहती हूँ आप लोगों को। अभी वुमेन्स डे है, 8 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ऑन एवरी 8 मार्च वी सेलिब्रेट,
because observing success of women's in political area or business area, educational areas और whole areas, है ना. तो मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, अपना फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ. हम जो होते हैं, हमें पावर बहुत होता है, बट कई रीजंस के कारण हम लोग उठ नहीं पाते हैं. कई बार होता है एजुकेशन के बाद मोस्टली गर्ल्स का क्या होता है, मैरिड हो जाता है ना. तो ऐसा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. एजुकेशन कंप्लीट हुआ और मैरिज हो गया. आफ्टर 5 years come back to my career. So I am very excited on this webinar. अभी हमारा कल्चरल है जो एक्सेप्ट नहीं करता है वुमेन्स का सक्सेस. इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको अपने को पावरफुल बनाना पड़ेगा, है ना. एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, किसी भी फील्ड का हो, कुछ भी हो, हमको एजुकेशन लेते ही रहना चाहिए. मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा BCA हुआ, MCA हुआ और 5 years के बाद तो सब जानते ही हैं कि प्रैक्टिस होना चाहिए. प्रोग्रामिंग के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए. विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होता नहीं है. बट मैंने गिव अप नहीं किया. अपने को गिव अप नहीं करना चाहिए. प्रॉब्लम जो होती हैं बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं. प्रॉब्लम बड़ी और छोटी हम बनाते हैं, प्रॉब्लम बड़ी छोटी होती नहीं है. हम अगर जो प्रॉब्लम को गिव अप कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है. प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वो बड़ी इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं. हम लोग IT सेक्टर्स के हैं, है ना. तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ. कंप्यूटर क्या करता है, मल्टीटास्किंग रहता है ना. एक साथ उसके साथ हम लोग कई सारे काम कर सकते हैं. कंप्यूटर जो रहता है मल्टीटास्किंग है, वो एज इट इज अपने जैसा रहता है. हम लोग मैं अपना घर भी देखती हूँ, ऑफिस भी देखती हूँ और अदर सोशल वर्क रहते हैं उसको भी देखती हूँ और वो इजीली हैंडल होता है. और ये हर कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ करने वाला ही कर सकता है ना. हमको किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए, सरेंडर नहीं करना चाहिए. प्रॉब्लम सारे फील्ड में प्रॉब्लम है. अपना रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम रहता है, एजुकेशनल फील्ड में रहता है, सभी फील्ड में रहता है. बट प्रॉब्लम को फेस करने का एक जज्बा रहना चाहिए. हम कभी भी, हमारा इंडियन कल्चर ऐसा ही है कि सपोर्ट नहीं करता है. अभी तो काफी कुछ सपोर्ट करने लगे हैं, है ना. लेकिन अपन अगर जो गिव अप कर देंगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि मतलब सामने वाला कभी इंकरेजमेंट नहीं करेगा. बहुत कम लोग होते हैं जिनको सपोर्टिव होता है. मैं चाहती हूँ कि हम सभी, मोस्टली तो अभी छा चुके हैं, बट मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स के सामने कभी आर्गुमेंट नहीं करना है. जो वो कहते हैं वो करना ही है ना. लेकिन अगर जो हमको लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं तो उसको कभी छोड़ना नहीं है. अपने को बना के रखना है, मन में रखना है. अपना स्टडी करते करते, अभी सर ने बताया था कि फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं. तो सीखा हुआ चीज कभी वेस्टिंग नहीं जाता है ना. तो इसको हमको सीखना है. मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीखे. क्या है, काम आता है, कभी ना कभी तो काम आता है. मैं पढ़ी नहीं रहती तो 5 साल बाद भी मैं कुछ कर नहीं सकती थी, है ना. मैं पढ़ी हूँ तो मैं अपने से ट्राई कर पा रही हूँ और मैं कर रही हूँ और मुझे सपोर्ट भी है. सर लोगों का भी सपोर्ट है और मैं खुद से भी करना चाहती हूँ, इसलिए कर रही हूँ. जब आप लोग सीखोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हो. फिर वो लाइफ में कुछ सोचने का, हम देखते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, वो सुन के 10 मिनट 15 मिनट मतलब अपने को मोटिवेशनल होता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. हम अगर जो सीखे रहेंगे तो हमको उस चीज को आगे करने के लिए जरूरी नहीं है कि अभी सीखो और अभी वो हो जाए. कई सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है
कि वो अभी काम नहीं आके बाद में काम आता है, और काम आता है। सीखे रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। हम औरतों को यही चीज रहता है कि हमको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे से ही जनरेशन होता है ना, हमारे से भूत भविष्य वर्तमान सब डिपेंडेड है। हम शिक्षित होते हैं, जेंट्स का शिक्षित होना उसके ही ऊपर निर्भर करता है, बट हमारा शिक्षित होना, हमारा पूरा फैमिली, पूरा एनवायरमेंट, सोशल फैमिली, सब चीज हम शिक्षित रहते हैं तो हमारा एनवायरमेंट शिक्षित होता है। हम शिक्षित नहीं हैं, नहीं रहेंगे तो हमारा एनवायरमेंट शिक्षित नहीं हो सकता है। ये चीज मैं समझी हूँ। कुछ लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। तोड़कर हर पिंजरा, तोड़कर हर पिंजरा, जाने कब उड़ जाऊंगी, तोड़कर हर पिंजरा, जाने कब उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा दो बंदी से, चाहे लाख बिछा दो बंदी से, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे, हूँ मैं नारी, हाँ गर्व है मुझे, हूँ मैं नारी। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बंधे हैं दुनिया ने पैर मेरे, भले ही परंपरावादी जंजीरों से बंधे हैं दुनिया वालों ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीर को तोड़ उड़ जाऊंगी। मैं कभी किसी से कम नहीं, मैं कभी किसी से कम नहीं, दुनिया को दिखलाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे, मैं हूँ नारी। थैंक यू। Very nice, madam. Very nice. Very nice. Please clapping all students or on the video. Very nice, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Happy Women's Day, ma'am. Thank you, ma'am. Same to you. Same Thank to you, you. ma'am. Happy Women's Day, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very happy Women's Day, ma'am. So nice. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू। अमित सर, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, या सर, या प्लीज। ओके, सो गेट रेडी। रेडी है सब लोग? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, Yes, sir. चलो हम सिखाने के लिए रेडी, आप सीखने के लिए रेडी? यस, प्लीज म्यूट द कॉल्स। विनोद, प्लीज म्यूट द कॉल्स। ठीक है विनोद, कॉल्स म्यूट कीजिए। ओके, सबसे पहले मैं आज डेमो देने वाला हूँ पीएचपी में, ठीक है, क्योंकि पीएचपी मैंने स्टार्टिंग की थी। प्लीज कॉपी और पेन ले लीजिए, ठीक है। और जो भी मैं आज सिखाऊंगा इसका रिकॉर्डिंग और इसका नोट्स आपको हमारी टीम दे देगी, प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं कि कुछ छूट भी जाता है नोट करना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएचपी जैसे मैंने बताया क्या होती है कि एक, मैं दोबारा बता देता हूँ छोटा सा, कि डायनेमिक वेबसाइट के लिए होती है नंबर 1, ये बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। नंबर 2, और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है बताइए? व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन? PHP 8। गुड। ये कब आया था? ये नवंबर 2020 में आया था, जस्ट अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो PHP का एक और एडवांटेज है कि ये अप टू डेट रहता है, हमेशा अप टू डेट रहता है, ठीक है। इसकी बहुत ही बिगेस्ट सपोर्ट है। कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप इनकी वेबसाइट में जाके इनका सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ PHP। नाउ अब PHP का सिंटेक्स क्या होता है? PHP का सिंटेक्स क्या होता है? कॉपी में नोट कीजिए। तो PHP का सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से, लेस देन क्वेश्चन मार्क एंड PHP, ठीक है। लेस देन क्वेश्चन मार्क एंड PHP, स्पेस नहीं होगा, ठीक है। और ये खुलता है और ये बंद होता है, लिखा तो मैं तो मैं जहाँ तो पाइप लगा हूँ। प्लीज म्यूट द कॉल, या प्लीज। इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग। और इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग टैग। क्लियर है? यस और नो? बताइए। Yes, तो yes, sir. व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ PHP? मैं दोबारा बता देता हूँ। लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ये ओपन होता है, और क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन, ये बंद होता है। और इसके बीच में हम लोग क्या लिखते हैं? कोडिंग करते हैं। जो भी हमारी कोडिंग होगी इसके बीच में आएगी, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कीजिए प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। सर इस कोडिंग को हम नोटपैड में लिखेंगे? हाँ, मैं भी बताता हूँ, हैव पेशेंस। या
तो सिंटेक्स में किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सिंटेक्स? हाँ हाँ, यूज नहीं होता है इसमें, कुछ भी नहीं यूज होता है अभी सिर्फ क्वेश्चन मार्क ओपनिंग टैग होता है और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन क्लोजिंग टैग होता है। हाँ, ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है, ठीक है ना। अब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अब आप लोग डेमो ले रहे हो तो मैं फर्स्ट बनता है कि एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन अक्सर कंपनी में पूछा जाता है, ठीक है। कंपनी में पूछा जाता है कि इज इट कंपलसरी टू क्लोज पीएचपी, इज इट कंपलसरी टू क्लोज पीएचपी। क्या पीएचपी को क्लोज करना इंपॉर्टेंट है? यदि मैंने लाइन नंबर 8 नहीं लिखा तो क्या प्रोग्राम चल जाएगा? कितने लोग हाँ यस बोलते हो, कितने लोग नो बोलते हैं? बताइए, क्या पीएचपी क्लोज नहीं चलेगा? नो। बता सकते क्यों? व्हाई नो? आपने बोला नो, क्यों? सिंटेक्स एरर। आपका आंसर गलत है यहाँ पे। नहीं नहीं, आपका आंसर गलत है। इसका आंसर है यस कि कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। नो एक्चुअली आएगा नो इट इज नॉट कंपलसरी, नो इट इज नॉट कंपलसरी। मतलब आप बंद नहीं भी करोगे तो भी प्रोग्राम चल जाएगा। इफ यू डोंट क्लोज पीएचपी, इफ यू डोंट क्लोज पीएचपी स्टिल इट विल रन, स्टिल प्रोग्राम विल रन। ऐसा क्यों? आपको पूछना चाहिए ना सर ऐसा क्यों? यदि मैंने आपसे पूछा क्यों, बिकॉज लास्ट सेमीकोलन, जो लास्ट सेमीकोलन होता है, क्या मतलब हुआ कहने का? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, प्लीज म्यूट कर दीजिए विनोद। जैसे मैंने लिखा पीएचपी, मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, ध्यान से देखिए, और मैंने सेमीकोलन लिखा और मैंने पीएचपी नहीं बंद किया, तो ये जो लास्ट सेमीकोलन है ना, लाइन नंबर 14 देखो, लास्ट सेमीकोलन इज ट्रीटेड एज व्हाट? क्लोजिंग टैग। समझे कि नहीं समझे? और समझे तो क्या समझे बताइए? यस सर। यस सेमीकोलन देने से वो टर्मिनेट हो जाएगा। बिल्कुल, यदि आपने सेमीकोलन लगा लिया और पीएचपी नहीं बंद किया तो भी प्रोग्राम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेमीकोलन को इमेजिन कर लेगा कि पीएचपी आपकी बंद हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हाँ बताइए बताइए। अगर सेमीकोलन नहीं देते हैं, यदि सेमीकोलन नहीं देते हैं तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे एरर दिखा देगा, ठीक है। बट सेमीकोलन तो कंपलसरी है, सेमीकोलन तो कंपलसरी है प्रोग्रामिंग में। हाँ बताइए। यस, अगर सेमीकोलन से ही टर्मिनेट हो जा रहा है तो क्लोजिंग टैग बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आगे चल के जब आप HTML यूज करोगे, HTML और PHP को, तो आपको क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप आगे चल के जब HTML यूज करोगे तो कई केसेस में आपको लगाना पड़ सकता है, इसीलिए बनाया गया है क्लोजिंग टैग। आप हेलमेट मत पहनो ना, हेलमेट बिना पहने भी तो लोग चला लेते हैं। हेलमेट क्यों पहनते हैं लोग? सेफ्टी के लिए पहनते हैं ना। तो उसी तरीके से आप ना लगाओ चल जाएगा, बट किसी केसेस में आपको लगाना पड़ेगा। आप बात को समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? यस सर। तो जैसे हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं, वैसे उसको क्लोज करना भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सर यहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? ये एक सिंटेक्स बनाया गया है छोटा सा, PHP जो कंपनी है उन्होंने एक सिंटेक्स बनाया है कि इसको ओपन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। इसका कोई प्रिस्क्राइब मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या लेस देन का, ठीक है ना। किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि सर PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सब लोग इतनी देर से सुन रहे हो PHP फुल फॉर्म क्या होता है पता है? तो क्या होता है? यस, फुल फॉर्म होता है इसका हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। कॉपी में नोट कीजिए, जिनको नहीं पता है वो कॉपी में नोट कीजिए। दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ PHP। PHP का सबसे पहला नाम क्या था? फर्स्ट नेम। तो PHP का जो सबसे पहला नाम था वो था पर्सनल होम पेज। क्या था? पर्सनल होम पेज। ये अभी का नाम है, ये जो अभी का नाम है, लेटेस्ट नेम क्या है इसका? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये इसका लेटेस्ट नेम है, कॉपी में नोट कीजिए प्लीज, ठीक है। एनीवन एनी डाउट्स? तो सबसे पहला नाम क्या था इसका? पर्सनल होम पेज। बाद में चेंज हो गया, क्या रख दिया गया? हाइपर टेक्स्ट क्या चीज? प्री प्रोसेसर, ठीक है ना। ओके, एनीवन एनी डाउट्स?
क्लियर है सबको? यस सर। ओके गुड। अच्छा, PHP सीखने के लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए? टूल्स मतलब क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में चाहिए? मुझे उम्मीद है सबके पास लैपटॉप होगा, ठीक है? तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक चाहिए होता है XAMPP। तो बेसिकली XAMPP क्या होता है? XAMPP एक सर्वर होता है जिसकी वजह से जिसमें आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो, ठीक है? तो XAMPP होना चाहिए, ठीक है? इसका लिंक हम आपको दे देंगे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा XAMPP को, ओके? और इसके बाद आपको चाहिए होगा Notepad++ चाहिए होगा, या तो आप यूज कर सकते हो Sublime, जिसमें मैं अभी टाइपिंग कर रहा हूँ वो है Sublime एडिटर, ठीक है? ये किस लिए होता है? ये कोडिंग के लिए होता है। अभी आप पूछ रहे थे ना कि कोडिंग के लिए क्या चाहिए, तो कोडिंग के लिए आपको चाहिए Notepad++ चाहिए, या तो आपको Sublime चाहिए। कॉपी में नोट कीजिए, इसका भी लिंक हम आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे दे देंगे, ओके विनोद? प्लीज प्रोवाइड द लिंक्स, ओके? यस बिल्कुल सर। किसी का कोई भी क्वेश्चन है अभी तक? PHP क्या होती है, क्या सिंटेक्स होता है, पक्का क्लियर है? सिंपल सर, सिंपल नोटपैड में नहीं होगा? सिंपल नोटपैड में नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि टाइपिंग करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये Notepad++ स्पेशली बनाया गया है कोडिंग करने के लिए, और इतना लाइट है, इतना हैवी नहीं है। आपके लैपटॉप में ज़्यादा स्पेस भी नहीं है तो भी चल जाएगा, इतना मतलब कोई इसका रैम नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। हाँ बताइए। हम लोग नोटपैड में HTML का करते हैं तो हो जाता है, Notepad++ का PHP का करते हैं तो ऐसा क्यों कि हम लोग नोटपैड में नहीं करते PHP और उसमें HTML? देखिए, PHP का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .php, और इसमें आप PHP तो लिखते ही हो, इसके साथ साथ आप HTML की कोडिंग भी कर सकते हो। ये एक एडवांटेज होता है। यदि आपने सिर्फ HTML लिखा .html तो इसमें सिर्फ HTML चलेगा या CSS चलेगा, इसमें PHP नहीं चलेगी, इसमें PHP नहीं चलेगी। तो PHP अपने साथ एक फ्रंट एंड लैंग्वेज HTML को सपोर्ट करता है, इसीलिए आप PHP इसमें आप रन कर सकते हो, ठीक है? प्लीज क्लास में अटेंशन दीजिए, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आगे बढ़ूं, ओके? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका PHP क्लासिफिकेशंस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था वेबिनार में कि PHP में सबसे पहले कोर्स होता है जिसका नाम होता है कोर PHP। तो कोर PHP यदि आपको आ गई, कोर PHP और MySQL, ठीक है? MySQL क्या होता है? MySQL डेटाबेस होता है। मैंने बताया ना डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, यदि आपने ध्यान दिया होगा। तो कोर PHP सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे। कोई PHP में यदि आपको आ गई तो आप एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप? डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है ना? और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे लारावेल। लारावेल बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है, ये वर्ल्ड्स फेमस कह सकते हो, वर्ल्ड्स का, दुनिया का सबसे फेमस फ्रेमवर्क है ये, ठीक है? इसकी सबसे ज्यादा जॉब है इस वक्त इंडिया में और इंडिया के बाहर, ठीक है? और आप एज अ फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा इसमें पैसा कमा सकते हो। तो ये सिखाते हैं, और इसके बीच में हम आपको सिखाते हैं ऊप्स। ऊप्स क्या होती है? किसी को पता है ऊप्स क्या होती है? व्हाट इज एन ऊप? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस यस, तो PHP सपोर्ट करता है ऊप्स। तो हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा नॉलेज देंगे कोर PHP के बाद, और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे लारावेल फ्रेमवर्क, ठीक है ना? ओके, ये था PHP का क्लासिफिकेशन, इसको नोट कीजिए आप प्लीज। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आ रहा होगा, पक्का? यस सर। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, लाइव एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो प्रोग्राम बनाने से पहले एक टॉपिक सीखते हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज अ वेरिएबल? प्लीज आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि वेरिएबल पे आपसे एक एक करके प्लीज, एक एक करके, वन बाय वन। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वेरी कर सकते हो जिनकी वैल्यू। वेरिएबल का सिंपल सा मतलब हुआ कंटेनर सर। तो यस, कंटेनर टू स्टोर वैल्यूज, जिसमें वैल्यूज, हाँ जो वैल्यू, बिल्कुल, कंटेनर टू स्टोर वैल्यूज, ठीक है ना? क्या सिंटेक्स होता है PHP में? मैं आपको बताता हूँ। इसका सिंटेक्स होता है डॉलर लिखते हैं, डॉलर, और वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इक्वल्स टू वैल्यू लिखते हैं।
ये इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है ना। और इसमें डॉलर साइन और वैल्यू कंपलसरी है, ठीक है। डॉलर साइन और सेमीकोलन और वैल्यू ये सब कंपलसरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लिखते हैं डॉलर ए इक्वल्स टू 10। ये एक छोटा सा एग्जांपल है वेरिएबल का, इसको कॉपी में नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। और इससे पहले आपको क्या स्टार्ट करना होगा, जैसे मैंने बताया क्या स्टार्ट करना होगा आपको, PHP। सो इट्स अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ शोइंग अ वेरिएबल, ठीक है। डॉलर ए इक्वल्स टू 10, इसको डिस्प्ले करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इको डॉलर ए। ये बेसिकली क्या कर देगा, ये आपका डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये डिस्प्ले कितना कर देगा, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, यस, एक्सीलेंट, ठीक है। तो यदि आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा क्लासेस रिपीट करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स, तो आप टेंशन ना लीजिए। आज बस मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ PHP के लिए, ठीक है। तो नोट हो गया। अब मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पाइथन का। पाइथन जैसे मैंने बताया क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। पाइथन के लिए आपको क्या क्या टूल चाहिए, यदि आपको पाइथन सीखनी है तो पाइथन सीखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम होता है सबसे पहले तो आपको पाइथन डाउनलोड करनी होगी। कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, इसकी वेबसाइट होती है python.org, कॉपी में नोट कीजिए। आप यहाँ से जाओगे अपने लैपटॉप में, आप पाइथन को डाउनलोड कर दोगे, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक एडिटर चाहिए जिसका नाम होता है IDLE। ये आपको बाय डिफॉल्ट वैसे मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है पाइथन के साथ, मगर आपको यदि ये नहीं पसंद है तो आप पाईचार्म भी कर सकते हो। पाईचार्म क्या होता है, एक एडिटर होता है जिसमें आप कोडिंग करते हो, किसकी, पाइथन की, ठीक है ना। तो ये दो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए अपने कंप्यूटर में यदि आपको पाइथन मतलब पाइथन पे काम करना है तो, ठीक है ना। पाइथन में वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे PHP में कैसे करते थे, मैंने क्या बताया अभी, PHP में लिखते थे डॉलर ए इक्वल्स टू क्या लिखते थे, 10, याद है कि नहीं याद है। पाइथन में कैसे लिखते हैं, पाइथन में सिंपल लिखते हैं, पाइथन में लिखते हैं ए इक्वल्स टू 10, ना सेमीकोलन लगाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसको डिस्प्ले कैसे करते थे, जैसे मैंने PHP में बताया कि लिखते थे इको डॉलर ए, इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें सिंपल हम लोग लिखते हैं प्रिंट और क्या लिखेंगे, ए। तो ये एग्जांपल है PHP का, पाइथन का, और वो एग्जांपल किसका है आपका, पाइथन का। दोनों आप नोट कर लीजिए, दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया, ठीक है। वेरिएबल्स इन PHP एंड पाइथन। किसी का कोई भी सवाल है यहाँ पे, तो डेमो क्लास, यस बताइए, यस। सर जैसे सिंटैक्स होता है PHP का, तो कि पाइथन का नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल कोडिंग स्टार्ट कीजिए, कुछ भी नहीं करना। PHP में जैसे आपको लिखना पड़ता है, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, यस सर, ठीक है। ये और भी आसान होता है सीखना, बट आसान दोनों है, मैं ये नहीं कहता आसान दोनों है। आपको आदत पड़ गई PHP की, ठीक है। PHP को आपको क्या लगाना है, बस स्टार्टिंग तो करना है, बाकी तो सब कुछ आसान है, ठीक है। अब देखो दो लैंग्वेज है, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना, एक थोड़ा सा तो अंतर होगा ही दोनों में, करेक्ट, यस सर। ओके। तो पाइथन में हम क्या सिखाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कोर पाइथन, इसमें सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा विद oops कॉन्सेप्ट, इंक्लूडिंग व्हाट, oops कॉन्सेप्ट, ओके। और इसके बाद हम क्या सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखने वाले हैं, जेंगो। यदि आपको जेंगो आ गई तो आप कोई भी एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो, किसमें, पाइथन में, ठीक है ना। और दोनों का कोर्स और इसकी डिटेल्स अभी आपको विनोद शेयर कर देंगे। आज के डेमो क्लास में कोई भी सवाल है किसी का, मुझसे पूछ सकता है, जितना मैंने बताया। सर PHP में इनपुट कैसे लेंगे, PHP में इनपुट के लिए हम लोग फॉर्म्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉर्म्स, जो मैं आगे चल के आप लोग को सिखाऊंगा। हम एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म से हम लोग मेटर पोस्ट या गेट से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, जो आपने पूछा, ठीक है। यदि मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में ऑलरेडी एक फंक्शन आता है, कौन सा, इनपुट नाम का। तो हम लोग पाइथन में पूछते हैं एंटर द वैल्यू, ये किस में होता है, ये होता है आपके पाइथन में, ठीक है ना। और PHP में कैसे होता है, PHP में आपको क्या यूज करना होता है, फॉर्म्स यूज करना, जो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा। और किसी का कोई सवाल, एनी डाउट्स?
क्लियर है सबको? तो कितने लोग इंटरेस्टेड है? हाँ बताइए बताइए, पूछिए क्वेश्चन। यस, पाइथन जो है वो बैकएंड होगा क्या कि फ्रंट एंड? बैकएंड दोनों है, बैकएंड दोनों है। PHP भी बैकएंड है और पाइथन भी बैकएंड है, ये दोनों आपके बैकएंड है, ठीक है ना? और किसी का सिर्फ सवाल? पाइथन को फ्रंट एंड बैकएंड दोनों बोलते हैं क्या, कि सिर्फ वो बैकएंड ही है? नहीं, सिर्फ बैकएंड है। पाइथन इज अ बैकएंड लैंग्वेज, ठीक है। फ्रंट एंड की बात करूं तो मैंने जैसे बताया, फ्रंट एंड में क्या होता है, HTML, CSS, ओके, एंड इसके अलावा क्या होता है आपका React.js आजकल बहुत चल रहा है। तो ये सब क्या है, आपके फ्रंट एंड है। बैक एंड की मैं बात करूं तो PHP, पाइथन, एंगुलर, ये सब क्या है, आपका बैक एंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो विनोद, नाउ आई स्विच ओवर टू यू। ओके, यस, या प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं अपना स्क्रीन हटाता हूं, विनोद शेयर कर लीजिए अपना स्क्रीन। यस विनोद। थैंक यू सर। आई होप सो कि सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, आपको जो सर ने बताया सब कुछ समझ में आया हो, ठीक है। क्योंकि ये सब खाली देखना नहीं इम्पोर्टेंट है, जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे और अच्छा व्यू नहीं लोगे तब तक समझना मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी चीजें सर की कुछ नहीं लगी होंगी आप लोगों को, और बहुत सारी चीजें जहां तक मुझे क्वेश्चन से ऐसा तो पता चल रहा है कि सभी लोगों को नॉलेज है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सभी से कम्युनिकेट करके कि सब लोग पाइथन के बारे में जानते हैं, PHP के बारे में जानते हैं, ठीक है, सब IT से रिलेटेड है, तो ये बहुत आसान है। तो चलिए अब बगैर किसी रुकावट के हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं, बार बार व्यू क्रिएट कर रहे हैं कि हम क्या आपको ऑफर देने वाले हैं, ठीक है। तो आज की ऑफर हमारी ये है कि जो हमारा ऑफर प्राइस है वो ओनली 3,999 है, ठीक है। जबकि एक कोर्स की प्राइस अगर देखा जाए तो काफी कॉस्टली है, लेकिन अभी हम जो ये प्राइस आपको दे रहे हैं 3,999 ओनली, ये हमारा प्राइस है। जो ऑफर करीबन 60% के जैसे ऑफर आती है आपको, ठीक है। अगर आप आज या आने वाले कुछ दिनों में अगर आप पेमेंट करते हो तो इससे भी डिस्काउंट ज्यादा मिल सकता है आपको। जो जैसे कि हमने बताया स्पेशल वुमन एम्पावरमेंट के तौर पे हम ये कोर्स चला रहे हैं, तो उसके लिए मैं स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ। ये स्पेशल ऑफर आपके सामने है, 3,499, 3,499 ओनली। यहाँ पे QR कोड भी दे रहा है, लिंक भी है। ये ऑफर ओनली 8 मार्च तक ही अवेलेबल रहेंगी। 8 मार्च को रात को 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। जहां पे अगर आप एनरोल करते हो इसमें से कोई भी एक कोर्स, जो आप एक तो वेब डेवलपमेंट इन PHP लीजिए, या फिर आप वेब डेवलपमेंट इन पाइथन लीजिए, या फिर आप वेब डेवलपमेंट इन एंगुलर, तीनों में से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो विथ रुपीज ओनली 3,499, ठीक है। तो ये स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। ये स्पेशल डिस्काउंट है, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। ये स्पेशल डिस्काउंट में आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर कर रहा हूँ। ये रेगुलर प्राइस है और ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट ऑफर ये लेना है तो आपको 8 मार्च रात को 12 बजे से पहले आपको रजिस्टर करना जरूरी है, ठीक है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट इन अप्रोच, अगर आप लोगों में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो हम एक डेमो क्लास भी जरूर अरेंज कराएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज अगर कोई अभी भी रजिस्टर करना चाहता है तो आप रजिस्टर कर सकते हो, सीधे मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ, QR कोड स्कैन करके भी आप पे कर सकते हो। कितने इंटरेस्टेड है आप लोगों में से? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड? हेलो हेलो सर, एक बार पेरेंट्स से बात करके फिर बताएंगे। यस पेरेंट्स फाइन बताएंगे। अच्छा चले,
नहीं बिल्कुल, आप लोग पेरेंट्स से बात कर लीजिए और आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हाँ, यस यस, पूछिए। सर कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिल, मतलब अगर कोई डाउट होता कॉन्टेक्ट नंबर या विनोद, ये हमारा नंबर है, सबसे पहले ऊपर ही कांटेक्ट नंबर दिया है हमने, तो आप यहाँ पे फोन कर सकते हो। आपका कोई भी क्यूरीज है तो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्यूरीज है कोर्स रिलेटेड तो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो 8182838888 पर। ओके, कोर्स रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो आप, क्लासेस कैसे होंगी? क्लासेस ऑनलाइन होंगे। ठीक है, क्लासेस सभी ऑनलाइन होंगे। सर चाहे लॉकडाउन अगर मतलब कोरोना खत्म हो जाएगा और फिर ओपन हो जाएगा जैसे, तो फिर तो अभी की कंडीशन में तो हम ऑनलाइन ही ले रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल, यस। अगर पूरा बैच एक साथ में एक कॉलेज में बनता है तो ही ऑफलाइन के लिए सोचा जा सकता है, वैसे नहीं सोचा जा सकता। बाकी दिक्कत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, आपको ऐसी फीलिंग आने ही नहीं देगी कि आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो, अच्छे से सीखोगे आप लोग। कनेक्ट करके देखिए, जिनको भी ऐसा डाउट है कि भाई हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे करेंगे, तो आप एक बार कनेक्ट करके देखिए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप में से जो भी नंबर ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो कम्युनिकेट कर दे, तो फिर हम अरेंज करा सकते हैं डेमो क्लास भी। पूछिए, किसी को कोई क्यूरीज है, क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। आप बोले ना हाँ दीपक सर, हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट्स जो है हमारे आपके यहाँ पे साउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं है सर। हेलो, हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, डिस्टर्बेंस है। करेक्ट, एक साथ में नजदीक कनेक्टेड है, इसलिए है। आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा डिवाइस के बीच में। डिवाइसेस एक साथ में कनेक्टेड है नंबर ऑफ, इसलिए नॉइस आ रहा है। हाँ अभी बोलिए। यस सर। हाँ सर, मेरा ये क्वेरी था, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी के अभी लास्ट टाइम पे पहुंच गए हैं, वो सर इंटर्नशिप के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे कि आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्या इंटर्नशिप के लिए? हाँ सर बिल्कुल, देखिए इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है, लेकिन इंटर्नशिप में कैसा होता है कि स्किल सेट्स होनी चाहिए। कोई भी कंपनी अगर आपको इंटर्नशिप देंगी तो आपके पास थोड़ा स्किल्स होना जरूरी है। करेक्ट, तो अगर किसी एम्प्लॉय के पास, किसी स्टूडेंट्स के पास अगर थोड़ा स्किल्स है, जैसे पीएचपी का है मान लीजिए, या फिर पाइथन का है, या कोई भी एक ऐसा स्किल सेट्स उसके पास है कि जो थोड़ा बहुत वर्क कर सकता है, तो कंपनी वहां इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है। हमारे कंपनी में भी अलग अलग, यस यस बिल्कुल। जी सर, जैसे कौन से लैंग्वेजेस आते हैं? ओके, कोर जावा, एडवांस जावा आता है उनको? जी सर। हेलो, जी सर, मतलब कुछ स्टूडेंट्स है जो मतलब उनके सिलेबस में था सर जावा, तो उससे वो आगे बढ़ के इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जैसे मेजर प्रोजेक्ट रहते हैं बच्चों का। बराबर सर, जावा में क्या है, अभी जावा काफी पुराना लैंग्वेज हो चुका है, तो कंपनी, बहुत सारी कंपनियां उस पर वर्क करती है, बहुत सारी कंपनीज नहीं करती है, तो जो कंपनीज प्लेटफॉर्म पे काम करती है वो वहां पे सपोर्ट कराती है। करेक्ट, जी सर। तो ऐसा अगर कोई स्टूडेंट्स अगर आपके पास है सर, जिनका एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, तो आप हमसे कनेक्ट करवाइए, हमारे एंड से जो भी हम मदद कर सके जरूर करेंगे सर। जी जी, ओके सर, थैंक यू सो मच सर।
और कोई क्वेश्चन? मैम? यस सर। हाँ जी मैम, सर। किसी का और कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? नो मैम। एनी क्वेश्चंस? यस मैम। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, करेक्ट? Sir, can you explain something about freelancing? हाँ, यस यस। देखिए, फ्रीलांसिंग मतलब आज के कंडीशन में ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आप रिमोट लोकेशन पे कोई भी पर्सन किसी से वर्क करा लेगा रिमोट लोकेशन पे। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई अलग जैसे लखनऊ बैठा है और कोई महाराष्ट्र बैठा है, बट किसी पर्सन को उसको दिल्ली का भी वर्क कराना है तो वो फ्रीलांसिंग में करा सकता है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी पर्सन से अपना काम करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट लोकेशंस। ओके, तो दिल्ली में बैठा आदमी भी अकोला के बैठे आदमी से वर्क करा सकता है, लखनऊ से बैठे आदमी से वर्क करा सकता है, ठीक है, रायपुर में बैठे आदमी से भी वर्क करा सकता है, भिलाई में बैठे आदमी से भी वर्क करा सकता है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग ही होता है। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी लोकेशंस पे बैठ के अलग अलग पर्सन्स के काम करते हो और उसके लिए आपको पे आउट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप वर्क करते हो और उसके अगेंस्ट में आपको पे आउट मिलता है, करेक्ट। तो ये सब आपका फ्रीलांसिंग का स्टेप्स है, समझ गए आपको? सर, अगर मुझे फ्रीलांसर बनना है तो मुझमें क्या स्किल्स होनी चाहिए तो मैं बन सकती हूँ? देखिए, स्किल आईटी में स्किल्स की तो बहुत सारी भरमसाठ टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। कभी आईटी कभी रुकता ही नहीं है। जितनी स्किल्स आपके पास ज्यादा होंगी उतना वर्क आपको ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको खाली वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आता है तो वो उतना ही वर्क ले सकता है, क्यों? क्योंकि उसका स्किल सेट उतना ही है। लेकिन उसके बाद में अगर आप सीख लेते हो, आपने HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो आपके पास थोड़ा सा स्किल सेट और बढ़ गया। तो अगर आप किसी ने अगर बोला कि मुझे 10 स्क्रीन बना के दे दो बूटस्ट्रैप में, तो जो वर्ड एक्सेल वाला बंदा है वो तो ऑब्वियसली अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्किल ही नहीं है। लेकिन आपके पास वो स्किल्स है तो आप वो अप्रोच कर सकते हो। तो जितना ज्यादा स्किल्स होगा आपके पास, जितना ज्यादा स्किल्स आपके पास होगा उतना ज्यादा वर्क आपको मिल सकता है, ठीक है। और वो खाली वर्क लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेने के बाद में आपको डिलीवर्ड भी कराना है। तो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में अगर बोला आपने कि 2 दिन में मैं करके देता हूं तो 2 दिन के पहले ही आपको देना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ही आपको नेक्स्ट वर्क मिलेगा, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि स्किल होना भी जरूरी है और उसके बाद में डिलीवर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और फिर अच्छा फीडबैक भी मिलना चाहिए कैंडिडेट्स का, ठीक है, क्लाइंट्स का। तो ज्यादा आपको अप्रोचमेंट हो सकता है। बेसिकली एक ऐप के थ्रू होता होगा? हाँ, ऐप भी है, वेबसाइट्स भी। अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो तो ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हो तो बहुत सारे वेबसाइट्स पोर्टल्स है फ्रीलांसर्स के, वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आज हर सेक्टर में वो टाइप के अलग अलग एप्लीकेशन और पोर्टल्स हैं। और कोई क्वेश्चन है? सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे कि दीपक सर ने अभी पूछा कि क्या हमारी MSc की बच्चियां और एक BCA भी है, BCA की भी बच्चियां इंटर्नशिप कर सकती हैं, तो उसमें हमारी बच्चियों को आने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो एक बात तो अच्छी है कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन इंटर्नशिप आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इंटर्नशिप हो सकती, कोर्स भले ही ऑनलाइन हो सकता है। इंटर्नशिप ऑनलाइन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि देखिए, इंटर्नशिप का पहला मेन मोटिव होता है सीखना, ठीक है। तो सीखना है के साथ, टीम के एक्सपर्ट्स के साथ आपको सीखना है। तो आपको ऑफिस आना चाहिए। जब तक आप ऑफिस जाओगे नहीं तब तक आप टीम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, तब तक आप चीज सीख नहीं सकते हो, करेक्ट। तो अभी जैसे I agree with you, but
एट प्रेजेंट जो अभी एटमॉस्फेयर है जिसमें काफी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने टीम के साथ जो सब घर में बैठ के काम कर रहे हैं, सारे टीम को उन्होंने होमवर्क दे रखा है, होमवर्क करना है। तो उस समय जो है सारा जो टीम है वो घर में बैठ के और वर्क कर रहा है। तो अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर उसमें इंटर्नशिप करते हैं तो सपोज उनका एक ग्रुप होता है जो कि ऑनलाइन कांटेक्ट करता है, तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जैसे कि ऑनलाइन जो है सारी टीम एक जगह ऑनलाइन मिल सकती है सर? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट्स है अवेलेबल जिनका पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया और वो फुल टाइम देने के लिए तैयार है, फुल टाइम इंटर्नशिप करने के लिए तैयार है, ठीक है, तो आप ऐसे रिज्यूम सेंड कीजिए, मैं जरूर बात करता हूँ और मैं जरूर सोचता हूँ इस बारे में अगर हम कर सकते हैं तो। वैसे अभी हमारे पास ऑनलाइन इंटर्नशिप हम नहीं रखे इसलिए ताकि हमारा मोटिव है कि स्टूडेंट्स को उतना डिसिप्लिन भी पता चले, उतना वर्क भी पता चले। जैसे मेरे पास बहुत सारे रिमोट लोकेशंस पे अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन हम अप्रोचमेंट जैसे मैंने बोला आपको कि मेरा ऑलरेडी रायपुर में एक अच्छा सेंटर है जहाँ पे हम सब फैसिलिटीज अवेलेबल करके रखी है, ठीक है। तो आप अगर वहां पे अप्रोच करते हो, देखते हो, तो आपको पता है कि वहां पे मतलब रायपुर ही नहीं, रायपुर के आउटसाइड लोकेशन से भी वहां पे एम्प्लॉयज है, ठीक है, इंटर्न्स है। तो आप लोगों के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप वहीं पे, तो ये मेरा एक अप्रोच था, ठीक है। मैं किसी और लोकेशन पे जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लोगों को सर थोड़ा सा बच्चों को आप नॉलेज दे दें कि आपका जो ऑफिस है वो नया रायपुर में भी शायद लॉन्च हो रहा है, तो इसमें शायद बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सॉरी मैम, इंटरप्ट यू मैम, है और हमारे यहाँ 2 BCA की गर्ल्स भी हैं, एक बिलासपुर से है, एक कांकेर से है, ITM यूनिवर्सिटी यही रायपुर से, तो दोनों अभी आई हैं, दोनों इधर फ्लैट लेके रहते हैं और आते हैं, वो सीख रहे हैं, मिस्टर अमित सर से ही सीख रहे हैं दोनों। तो इधर बना हुआ है मैम, हमने बीटेक के बच्चों को भी इंटर्नशिप किया है, अभी MCA और BCA के बच्चे भी हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मैम। न्यू रायपुर ओके ओके, सो नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेक्टर 22 में IT क्लस्टर पार्क है, इधर ITs मैं पूरी डिटेल शेयर कर देता हूँ आपको फिर से। यहाँ पे हमारा अच्छा बड़ा ऑफिस है और आप प्लीज, मैं तो आपको इनवाइट भी करूंगा, आप पर्सनली एक बार विजिट कीजिए ताकि आपको। श्योर सर, श्योर, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट मिले। क्या आप लाइव प्रोजेक्ट वहाँ पे डेवलप कराते होंगे? तो वेरी नाइस, आई एम इंटरेस्टेड इन लाइव प्रोजेक्ट। यस मैम, करवाते हैं, हमारा वही कराते हैं, इसीलिए हमारा। यस नाइस। एक्चुअली एक क्वेश्चन और है, क्या आप बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं तो स्टाइपेंड आप देते हैं क्या? यस बच्चों को मिलेगा? यस मैम, क्योंकि बच्चे उससे मोटिवेट होंगे। यस मैम, है मैम। ओके, तो थोड़ा सा ये भी शेयर कर दीजिए कि अगर वो इस तरीके का ज्वाइन करते हैं वहाँ इंटर्नशिप, तो उनको क्या स्टाइपेंड मिलेगा? यस मैम, है मैम, आपको लेटर सेंड कर देंगे मैम। ओके, नाइस मैम, नाइस। और मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो अमित सिन्हा सर को बधाई दूंगी। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही अच्छे तरीके से जो बेसिक नॉलेज जो होता है, वो जो आधार होता है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। एक तो उनकी वैसे भी उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे वो। और उसके अलावा जो है पूनम मैडम ने बहुत जो है मोटिवेट किया हमारी बच्चियों को, हमारे स्टूडेंट को। तो थैंक यू सो मच पूनम मैडम। एंड अमित सिन्हा सर, नाइसली आपने प्रेजेंट किया है, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वंडरफुल सेमिनार के लिए मैं विनोद सर को जो है थैंक्स बोलती हूँ, जो आपने ऑर्गेनाइज किया सर, वंडरफुल
आपका सेमिनार रहा। आई थिंक कि बच्चे जो हैं इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको मिली होगी और वो जो है बेसिक जो नॉलेज है पर बहुत ज्यादा बहुत अच्छे ढंग से रखा गया है उसको, तो डेफिनेटली बच्चों को इससे जो है बहुत बेनिफिट तो मिलेगा। आई होप सो कि बच्चे जो है इसका अच्छा खासा बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच सर, ऑल थ्री पर्सन मिस्टर विनोद पांडे सर एंड अमित सिन्हा सर एंड पूनम मैडम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ऑलवेज वेलकम। सभी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाए, जो हमारे ऑफर्स है, डिस्काउंट्स ऑफर, इसका फायदा उठाए ताकि हम आगे बढ़ पाए। और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे तो हम उनके लिए डेमो क्लास भी अरेंज करा सकते हैं। तो सभी लोग इन्फॉर्म कीजिए हमें जल्द से जल्द। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, थैंक यू मैम। फिर से एक बार मैं पूरा भिलाई महिला महाविद्यालय का थैंक यू, आभारी रहूंगा। उन्होंने मुझे एक मौका दिया हमारी टीम को, और यशम टीम की तरफ से मैं फिर से एक बार थैंक यू करता हूँ पूरे भिलाई महिला महाविद्यालय को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और प्रिंसिपल मैम, एचओडी मैम, सभी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन फिर यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है मैम, और कोई क्वेश्चन तो शायद नहीं होगा, करेक्ट? बिल्कुल सर, अब यही हम अपना सेशन क्लोज करते हैं और मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम सब आगे एक साथ मिलके और ग्रोथ करेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियां लेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। आइए यशम एकेडमी ज्वाइन कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए यशम एकेडमी। हमारा वेबसाइट भी एड्रेस है www.yasham.academy, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन पे भी फ़ोन कर सकते हो 8182838888 पे, या फिर आप प्रत्यक्ष हमारे सेंटर हेड से भी मिल सकते हो। हमारा एड्रेस है यशम एकेडमी, 2nd फ्लोर, शांति कृपा, नियर SS करोड़ा ज्वेलर्स के पास, गांधी चौक, अकोला 444001। या फिर आप हमें सोशल मीडिया साइट पे भी सर्च कर सकते हो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, G+ और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।